Welcome students in biology class. In previous video we described about the nutrition process. On the basis of nutrition different type of organisms. Then we discussed the how do organisms obtain their nutrition in case of amoeba. We also discussed. Okay. And previous video we described about the photosynthesis process. I hope that all of you clear about them. What happen in case of photosynthesis? Okay. Today we start the nutrition in human beings. Okay. This is the very important topic for living organisms, means for the human beings. How can the nutrition occurs? How can the food are digested? How can they use our bodies? Nitrogens. There is the different components. Food के we also discussed in previous slides. ठीक है. Human beings are omnivorous in nutrition base पर जो human beings है omnivorous है, you know about them, means that is the intake the plant material as well as the flesh. ओके वो ये दोनों पर डिपेंड होता है, इसको हम कहते हैं omnivorous. And the mode of nutrition in case of human beings, that is similar process which occur in case of amoeba, means holozoic nutrition occurs. Clear? Okay. So we start the human digestive systems. First thing, what is the digestive? Yeah, what is the digestion? Digestion is a biological process in which, that is the breaking down of insoluble complex food material into soluble and simple form. Okay, clear? इसमें जो कम्प्लेक्स इंसॉल्युबल फूड मटेरियल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या ब्रेकिंग टूट करके किस में बन जाता है, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. ओके. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम they are divided into two main parts. One is the alimentary canal, another is the digestive glands. Okay. The first one is the alimentary canal. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें एलिमेंट्री कैनाल की ह्यूमन बींग्स में, तो इट इज़ ए ट्यूबुलर प्रोसेस structures which are 9 to 10 meter in long and consist of the following parts. 9 meter long होती है. ओके, 9 to 10 नहीं, only 9 meter in long alimentary canal that is present in human bodies, and they consist the following parts. alimentary canal में कई parts होते हैं, we discuss in later. Okay. Second thing, that is the digestive glands. For completely digestion occurs with the help of digestive glands. Okay. So first we describe about the alimentary canal and different part of the alimentary canal.
First one is the buccal cavity. What is the buccal cavity? The cavity present between upper and lower jaw, this is known as the buccal cavity. ऊपरी और निचली जबड़े के बीच में जो गैप है उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं. दैट इज क्लियर. बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स. फर्स्ट वन इज द टीथ. अब टीथ की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 4 टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. ठीक है. जो इन फ्रंट के टीथ होते हैं वो इंसीजर होते हैं. कैनाइल जो पॉइंटेड टीथ होते हैं उसको कैनाइन बोलते हैं. और जो लास्ट के जो टीथ होते हैं उसको मोलर बोलते हैं. और उसके पहले जो टीथ होते हैं उसको प्रीमोलर. मीन्स देयर इज 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट. तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दे आर गिवन डिफरेंट टर्म. जैसे पहला इसमें टर्म यूज किया था डाइफियोडॉन्ट. डाइफियोडॉन्ट मीन्स 2 set of teeth. Okay, and 2 times that is appears. Thecodont. Thecodont means the teeth are present in socket. Heterodont. थर्ड टर्म यूज करते हैं टीथ के लिए. हेट्रोडॉन्ट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन प्रेजेंट. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ. तो दे आर 3 टर्म दैट इज यूज फॉर द टीथ. क्लियर. अब इसकी फार्मूला की बात करें तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. अपर जा में आपका 8 पेयर्स होते हैं. मीन्स इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3 दैट इज प्रेजेंट इन पेयर upper jaw as well as that is the same present in lower jaw. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 1 2 3. ठीक है. इन पेयर स्टार्ट्स किससे आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. ठीक. और इसमें जो फर्स्ट टीथ ओरिजिन होते हैं दिस नोन एज द मिल्क टीथ. द नंबर ऑफ मिल्क टीथ दैट इज द 20 इन नंबर. And that is originated in 6 to 12 years तक ये प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में. ओके. और उसके बाद ये लॉस्ट हो जाते हैं एंड दे कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टीथ. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. सेकेंड आई है फेरिंग्स. व्हाट इज द फेरिंग्स? ओके सॉरी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. बक्कल कैविटी की बात करें तो टीथ हुआ. सेकेंड है टंग. फॉर द टेस्ट, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा एंड फॉर द swallowing. टंग, देर इज द मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट. ऑन द surface of tongue there is the buds, taste buds are present which are responsible that is provide the taste. ठीक है. फंक्शन क्या है इसका? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा एंड फॉर swallowing. फूड को सलाइवा में मिक्स करना और उसको स्वॉलिंग करने में सहायता करना. मतलब इजली जब सलाइवा मिक्स हो जाता है इजली वो फेरिंग्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है. उसको स्वॉलिंग में सहायता करता है. क्लियर. थर्ड पार्ट है बक्कल कैविटी में आपका सलेवरी ग्लैंड्स. 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट which secrete the saliva and they contain the enzyme ptyalin. अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं. टाइलिन enzyme that is known here, ptyalin enzymes. Okay, that is clear. और यदि सलेवरी ग्लैंड की बात करें 3 पेयर्स कौन कौन से होते हैं तो दे आर पैरोटिड्स. पैरोटिड पाला है विच आर बेलो द ईयर, जो कान के निचली भाग से निकलता है, पैरोटिड बोलते हैं. सब मैक्सिलरी एट द एंगल ऑफ लोअर जा के लास्ट पार्ट से निकलता है. और सब लिंगुअल
बेलो द टंग, टंग के नीचे जो वाग से निकलता है उसको सबलिंगुअल कहते हैं। तो देयर आर 3 salivary glands are present which are open into the mouth, parotid हो गया, submaxillary and sublingual। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आइए, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द फनल शेप्ड ओपनिंग एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के बैक साइड में फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इट लीड्स इनटू द 2 ट्यूब्स, फूड पाइप एंड विंड पाइप। यहाँ पर 2 पाइप प्रेजेंट जहाँ पर होते हैं, एक विंड पाइप होता है जिसके थ्रू एयर पास होता है और एक फूड पाइप होता है जिसके थ्रू फूड पास होता है। तो फेरिंग्स के पार्ट जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे ही एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बोथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। दिस इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन वंस टाइम दैट इज ओनली वन फंक्शन, मीन्स यदि आप सांस ले रहे हो तो उस समय आप फूड निगल नहीं सकते, वो क्या करता है फूड पाइप वाले को क्लोज कर देता है, और जब फूड निकलते हो तो वो जो ट्रैकिया रीजन है मीन्स विंड पाइप को क्लोज कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आइए, ओएसोफेगस। इट इज द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। यह लॉन्ग ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके। फूड पासेस बाय द रिदमिक कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। जो फूड ओएसोफेगस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन होता है, संकुचन और शिथिलन, ये प्रक्रिया कंटिन्यू होती है जिससे फूड ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस या मूवमेंट्स। ओके। नो एंजाइम आर सिक्रेटेड, ओएसोफेगस में कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है ये स्टमक। इट हैज़ 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। इसमें 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच आर सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर 3 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। पहला इसमें है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो HCl का फंक्शन क्या है? फर्स्ट, दैट इज किल द माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड। सेकेंड, दे कन्वर्ट द मीडियम ऑफ फूड्स फॉर फर्दर एक्शन ऑफ द एंजाइम, क्योंकि जो सलाइवा मिक्स वो आपका अल्कलाइन मीडियम होता है, क्षारीय होता है, और यहाँ पे क्योंकि जो आगे प्रोसेस है वो एसिडिक कंडीशन में होता है तो उसके मीडियम को ये कन्वर्ट करता है एसिडिक में। और थर्ड जो मेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इनएक्टिव पेप्सिन को यह एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज क्लियर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl। सेकेंड है म्यूकस, इनर लेयर ऑफ द स्टमक दैट इज secreted ऑफ द म्यूकस, दे प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो इनर वॉल स्टमक का उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। थर्ड वन, पेप्सिन, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू द पेप्टोन्स। प्रोटीन क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको डाईपेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिन था उसको एक्टिव HCl के कारण एक्टिव जाता है and they break down into the peptones. A small amount of gastric lipase is also present in gastric juice. Gastric juice में कुछ small amount में lipase enzyme भी present होता है which break down lipids, जो लिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज 3 मेन पार्ट्स, या दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ द ड्यूडेनम, जो स्टमक से पार्ट निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन का,
यू ट्यूबलेट स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है वो आपका ड्यूडेनम रीजन है। ठीक है, क्या होता है ड्यूडेनम में? अपर पार्ट ऑफ द स्टार्ट आफ्टर द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक, it gets bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas through common bile duct। ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में bile juice which are secreted from the liver and pancreatic juice which are secreted from the pancreas, दोनों उसमें आके ओपन होते हैं। बाइल जूस इमल्सिफाइड फैट्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। बाइल जूस क्या करता है? फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है और उसको दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस। ओके, बट दे कैन नॉट वर्क इन द डाइजेशन, मीन्स देर इज नॉट यूजेज इन द डाइजेशन। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनल वॉल मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। अब यहाँ पर फिर बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रेट होता है ड्यूडेनम वॉल से और फूड मटेरियल को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है? एल्कलाइन मीडियम में, फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम जब होगा तो उसके लिए जो फूड होना चाहिए कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन मीडियम का होना चाहिए। दैट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट आइए जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है जो क्वाइल ट्यूब स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द जेजुनम। क्लियर। थर्ड है एलियम, हाईली क्वाइल्ड रीजन विच ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हाईली क्वाइल्ड के बाद जब ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वह पार्ट एलियम होता है। और in case of small intestine there is the villi are present. What is the villi? There is the finger like projection present inside the small intestine which are responsible for the increase the surface area of small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो जो उसकी लेंथ होती है 6 to 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, मीन्स 9 मीटर में से 6 to 7 लॉन्ग केवल स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। वाई दैट इज कॉल्ड द स्मॉल? बिकॉज जो उसकी थिकनेस होती है, ठीक है, डायमीटर, देयर इज द स्मॉल, सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। तो विलाई का फंक्शन क्या है? विलाई दैट इज द देयर इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर इन केस ऑफ small intestine, they absorb the digested food from the small intestine and they transfer into the blood capillaries। जो small intestine रीजन है, blood capillaries जो उसमें वो ट्रांसफ़र कर देता है and increase the surface area for absorption of digested food। और क्या करता है? इंक्रीज कर देता है एरिया को, सरफेस एरिया को, जिससे इजली फूड एब्जॉर्ब हो जाए। एंड पैंक्रियाटिक जूस कंटेन पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस में आपके डिफरेंट टाइप एंजाइम्स होते हैं विच आर यूज फॉर द डाइजेशन, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों किसके लिए है? एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए है, लाइपेज भी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ किया जाता है, स्टार्च के लिए, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम से। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स। ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसके लेंथ की बात करें नियर अबाउट 1 मीटर होती है। इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, इसके 2 मेन पार्ट होता है, कोलन एंड रेक्टम। नो एंजाइम आर सिक्रेटेड, यहाँ पर कोई एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता। व्हाट इज द फंक्शन? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? फंक्शन इट इज़ द एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड इजेशन ऑफ द वेस्टेज। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करना, रीएब्जॉर्ब करना, जिसको कहते हैं एब्जॉर्ब करना, बॉडी में वाटर को मेंटेन करना और एगेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड एज फीसेस इन रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है फिशेस फॉर्म में, कहाँ? रेक्टम रीजन में। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
क्लियर हुआ है? ओके, you see there is different part of alimentary canal here.